ناظرین السلام علیکم. خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان. 10 دسمبر کی تاریخ ہیومنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اس مناسبت سے پوری دنیا میں انسانی حقوق سے متعلق پروگرام، کانفرنس، سیمینار اور دیگر سرگرمیاں انجام پاتی ہیں. اسی حوالے سے آج لکھنؤ کی ایک مشہور تنظیم انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپلفمنٹ کی طرف سے ہیومنس ڈے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں انسانی حقوق سے متعلق مختلف موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور باہم اظہار خیال کیا گیا. واضح رہے کہ پروگرام کی صدارت اس تنظیم کے صدر جناب انیس انصاری صاحب، ریٹائرڈ IAS، اور افتتاحی کلمات جناب محمد خالد صاحب نے انجام دیے. وہیں پر اس پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے انتہائی مشہور شخصیت جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب، سابق قومی چیئرمین اقلیتی کمیشن، شریک تھے. اس پورے پروگرام کو جناب طارق صدیقی صاحب نے چلایا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ. اس پروگرام میں انسانی حقوق سے متعلق مختلف موضوعات زیر بحث آئے. خاص طور پر شرکاء نے کشمیر کے موضوع کو اٹھایا اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر اظہار خیال کیا. اسی طرح حال ہی میں پارلیمنٹ میں سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کو پاس کیا ہے اور آئندہ NRC کا موضوع آنے والا ہے. ان دونوں موضوعات پر شرکاء نے تفصیل سے اظہار خیال کیا، باہم تبادلہ خیالات کیے گئے اور یہ طے کیا گیا کہ اس کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے. پروگرام کا آغاز اس تنظیم کے سیکریٹری جناب محمد خالد صاحب کی افتتاحی گفتگو سے ہوا. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اس تنظیم کے صدر جناب انیس انصاری صاحب نے بڑی تفصیل سے NRC اور CAB پر روشنی ڈالی اور اس سے بچنے کے لیے یا اس کے اثرات نہ ہوں، اس سے رکنے کے لیے کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. بنیادی طور پر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ساری دنیا کے تقریباً سبھی ملکوں میں اڈاپٹ کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 30 آرٹیکلس ہیں، ایک پریمبل ہے، اور اس کا باب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، وہ چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی جینڈر کا ہو، کسی بھاشا ہو، اس کی بنیاد پر سرکاریں اور راج تفریق نہ ڈالیں. بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنایا، 1950 میں لاگو کیا، اس میں تقریباً ساری دفعات جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی سبسٹینس ہے، بنیادی جو شرطیں، وہ سب کے سب شامل ہیں. ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی شخص کے خلاف اور خاص طور سے کسی بھی شہری کے خلاف مملکت کے ذریعے کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. اور اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے سرکار کی طرف سے جس میں تفریق ہوگی مذہب کی بنیاد پر، بھاشا کی بنیاد پر، پلیس آف برتھ، ڈومیسائل، جینڈر کی بنیاد پر، تو اس کو سپریم کورٹ اور دوسری عدالتیں غیر قانونی قرار دے سکتی. آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب، سابق قومی چیئرمین اقلیتی کمیشن، انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور روشنی ڈالی کہ جو ہندوستان میں جمہوریت کو بچانے کے لیے مضبوط ادارے ہیں، انہی ادارے اور انہی ٹولز کے ذریعے سے ہم آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی اور اپنے تجربات لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. ابھی ذکر ہوا 1950 کے پریزیڈنشل آرڈر کا. 1948 میں کیا ہوا؟ ہم نے سوچا تھا کہ وہ دن ہم نے اب تاریخ میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا. اب اس قسم کی حرکتیں، ان سے وہی دکھ، وہی درد اور وہی خوف دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے. لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہی جمہوری جو سہولیات ہیں
जो जिक्र इन्होंने किया कि मेरा भी उसमें एक हिस्सा रहा है उनको हकीकत बनाने में, तो उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि इसमें समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात के नुमाइंदे और अहम शख्सियात मौजूद थे, जहाँ स्टेज पर जनाब अनीस अंसारी साहब, वजाहत हबीबुल्लाह साहब, मोहम्मद खालिद साहब और तारिक सिद्दीकी साहब मौजूद थे। वहीं इस प्रोग्राम की रौनक जनाब मौलाना शहाबुद्दीन सल्फ़ी साहब, मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, मौलाना ज़की नूर साहब, जमात इस्लामी से जनाब ज़हीर साहब, और अगर हम सियासी पार्टियों की बात करें तो सपा से जनाब अमीक जामई साहब, इसी तरह राम किशोर साहब फॉरवर्ड ब्लॉक के यूपी के सदर, अनूप पटेल साहब कांग्रेस से, सुरेश लोधी साहब बीजेपी से, इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ NGOs हैं इनसे मुतल्लिक़ अफराद मौजूद थे। सहाफ़त की दुनिया का एक नुमाया नाम जनाब इब्राहिम अलवी साहब, इसी तरह समाजी कारकुन और बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत जनाब नजमुद्दीन फ़ारूक़ी साहब, एडवोकेट रेहान साहब, इनके अलावा रेहान खालिद साहब और दिगर दानिश्वर और जो लोग मिल्लत के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं, ऐसे तमाम लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इजहार ख्याल के लिए कई लोगों ने अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं इन हजरात की राय क्या थी। ख़ास तौर पे इन लोगों ने जो सजेशन दिए हैं वो इंतहाई अहम हैं। आइए डालते हैं सजेशन पर एक नज़र। आज हमारे ऊपर आफत गैप और इनाफे की शक्ल में मुसल्लत हो चुकी। हमें इत्मीनान था कि शेख अमीर शाह जी से अजीत डोभाल जी से बातचीत हो गई है डिनर में, मामला ठीक है, लेकिन ये जो त्रासदी में बदलने वाला गैप, जो पहली बार बेसिक प्रियम्बल में इक्वालिटी जो हमारे देश के लोगों का सपना था, उसको पर खर्चे उड़ाकर जिस मजहब की बुनियाद पे एक जिन्ना का मुल्क बनाने का कोशिश श्री अमित शाह जी कर रहे हैं, ये हमारे देश का ढांचा ही बदल देगा। ये हमारे बुजुर्गों का सपना नहीं था, महात्मा गांधी जी का, आजाद का, का सपना नहीं था। तो अब ये लड़ाई लड़ी कैसे जाए? मुझे समझ बहुत अच्छी बात है, प्यार तो जरूरी है। अब ये बातचीत और डिनर पे बातचीत नहीं होगी। इस मुल्क के लोगों को, दानिश्वरों को, बड़ों को, आप हम सब नौजवानों को, यहाँ पे बहुत सारी फोर्स है नौजवानों की, सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को रास्ता बताइए, डांटिए, फटकारिए कि कैसे इस लड़ाई को हम लोग को करनी है। अब ये MLA MP की लड़ाई नहीं है। हमें इस बात पर भी यकीन नहीं है कि पार्टी में चुनाव होगा, क्योंकि वो नेशन इलेक्शन थोप देगा। कि हम एक ऐसी जगह हैं जिसमें एक मुल्क को हमने तस्लीम किया है और मुल्क भी अपने पूरे शबाब पर है, यानी मौजूद है मुल्क, उसका कानून है, उसका सिस्टम है, उसका निज़ाम है। तो हम जो गुफ्तगू करें वो अपने ह्यूमन राइट्स को पाने के लिए उस निज़ाम और सिस्टम में जाकर कोशिश करें कि कहाँ से हम इसको मजबूत कर सकते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आई थी हमारी सदारती गुफ्तगू कि कैसे कैसे इन चीज़ों को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाए। NRC और कैब के पस मंजर में जब गुफ्तगू शुरू हुई तो बड़ी कमज़ोर हो गई। तो गुफ्तगू बहुत मजबूत आनी चाहिए कि एक सेकुलरिज्म में, एक जमहूरी निज़ाम में, एक मुल्क में जिसमें तीन चीज़ें बहुत मजबूत हैं। एक तो एक कानून है जिसकी बात कही गई, कानून बहुत अच्छा बना हुआ है, कानून में पूरी इसकी गुंजाइश है जिसकी वजाहत हो चुकी। दूसरी चीज, जिन सियासी पार्टियों को हमने मुंतखब करके भेजा है वो मुंतखब हैं। हम ये बेवकूफ़ी ना करें कि हम ये कहें कि नहीं वो सियासी पार्टियां गलत कर रही इसलिए हम आज चिल्लाएंगे। चिल्लाने का हक भी है आपको, लेकिन उसका भी एक दायरा है। आप अगर गलत करने लगेंगे तो आप तो कैसे रखेंगे सियासी पार्टियां सही करें? आप अगर गलत अंदाज में कोई काम करने लगेंगे तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि सियासी पार्टियां सही करेंगी? तो जो लोग, हमने सियासी पार्टियों को तस्लीम किया है, सियासी पार्टियां अपना काम करें, उलमा अपना काम करें, जो लोग सोशल सिस्टम में काम कर रहे हैं वो अपना काम करें। अब उलमा जाकर के धरना देंगे तो सियासी पार्टियों का काम क्या है? खत्म कर दिया जाए। सियासी पार्टियां मौजूद हैं, हमें सियासी पार्टियों से वो मुतालबा करना चाहिए, अलबत्ता ह्यूमन सिस्टम में, यानी पब्लिक रिसोर्सेज में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो काम हमारी जिम्मेदारी है उसे हम करें। तो दूसरी चीज ये है कि हम कभी भी चैलेंज ना करें पार्लियामेंट को, चैलेंज ना करें इलेक्शन को, चैलेंज ना करें इन चीजों को, बल्कि हम ये कहें कि हाँ एक हुकूमत मुंतखब हुई है, उस पर हम बात करें। तीसरी चीज ये है जो बहुत बुनियादी है इस पस मंजर में, कि हम कैब को और NRC को भी समझने की कोशिश करें कि जो बात कही जा रही है वो क्या है और उसको कानूनी तौर पर हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसको हम उसका मुकाबला करेंगे। अभी
डॉक्टर अली अंसारी साहब ने बहुत अहम बात कही थी कि कांग्रेस के ज़माने में एक कानून पास किया गया था कि जो लोग जो इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे, जो हुकूक हासिल हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन की बुनियाद पर अगर इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो हुकूक खत्म हो जाएंगे। तो ये भी तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। उसके खिलाफ कितने लोगों ने आवाज उठाई। तो अभी एक अच्छा मौजू छिड़ गया है हिंदुस्तान में कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से अब हम ये गुफ्तगू करें कि सियासी पार्टियों को जितनी ताकत हमने और आपने दे रखी है, क्या वाकईतन उतनी ही ताकत उनको चाहिए या उससे कम ताकत चाहिए। याद रखिए, जब भी ताकत किसी को ज्यादा दे दी जाएगी तो वो जुल्म करेगा। ये हो ही नहीं सकता है जुल्म ना करेगा। सियासी पार्टियों को हमने फुल फ्लेज ताकत दे दी है, इसलिए सियासी पार्टियां गलत कवानीन भी बनाएंगी। कांग्रेस ने भी अपने जमाने में किया है, बीजेपी भी आज कर रही है। इसलिए हमें इस पस मंजर में सोचना चाहिए, इसको इस्लाम और गैर इस्लाम के पस मंजर में भी नहीं सोचना चाहिए। यकीनन मुसलमान मुतासिर बहुत सारे कवानीन से हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स का मसला मुसलमान गैर मुस्लिम सबका है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इसको हिंदुस्तान के पस मंजर में सोचें, सिर्फ मुसलमानों के पस मंजर में ना सोचें, वरना लड़ाई हार जाएंगे अगर सिर्फ मुसलमानों के पस मंजर में उन्होंने कोई भी कोशिश की। हमको पहले तो मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, उसके बाद ताकत की ज़रूरत है। ताकत किन चीज़ों की होती है? एजुकेशन की होती है, दौलत की होती है। दौलत कहाँ खर्च हो रही है? शादी ब्याह हमारे देख लीजिए, उर्स देख लीजिए, पुल देख लीजिए, झंडा उठाना देख लीजिए। ये सब कहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया? कि अब ये जो हमारी कौम, हमारी मिल्लत, बल्कि हमारे मुल्क के साथ जो हालात हैं, ये सिंड्रोम के हालात हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी सिंड्रोम वो बीमारी होती है कि जब मल्टी आर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसका कोई रास्ता नजर नहीं आता, अब करें क्या। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत ये होती है कि जो मल्टी स्पेशलिटी के लोग होते हैं उनके साथ उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर इस तदबीर के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि शायद इसमें हम कामयाब हो जाए। तो अब जो हालात हैं वो सिंड्रोम के हालात हैं कि अब एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ नहीं देखना है, रिलीजियस लीडर की तरफ नहीं देखना है, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ नहीं देखना है, बल्कि एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म तैयार करके और एक मल्टी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है, तब शायद अपनी मज़ीद करेंगे। नाजरीन, इस पूरे प्रोग्राम में जो चीज़ खुल के सामने आई वो ये कि ये सारे लोग इंसानियत की पामाली के लिए इंतहाई मुतफक्किर नज़र आए। उन्हें ये एहसास है कि ये वक्त है कि आवाज़ उठाई जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। यहाँ पे बड़ा अहम सवाल यही रहा कि आवाज़ बुलंद करने के लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और यही मौजू तमाम लोगों के जहनों में और उनकी ज़बान पर गर्दिश करता रहा, जैसा कि हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी नई खबर के साथ।